Chapter 6. Life in the Towns and the Villages. There was a tremendous growth of towns due to increase in trade and commerce, surplus food production, use of fallow land, development of crafts, and extensive use of iron. In fact, the use of iron tools and implements played a very important role in the social, political and economic development of society. ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि, सरप्लस फूड प्रोडक्शन, अधिक अन्न उत्पादन, फैलो लैंड, अनुपयोगी भूमि का उपयोग, क्राफ्ट्स, हस्तकला का विकास और आयरन, लौह धातु के अधिक प्रयोग के कारण नगरों का तेजी से विकास हुआ। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, लौह उपकरणों और औजारों के उपयोग ने सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. The widespread use of iron implements in eastern Uttar Pradesh and western Bihar led to substantial growth of agriculture in the 6th century BC. The new iron tools and equipments allowed peasants to produce more food grains than they needed for their own consumption. In addition to new tools, better agricultural techniques such as transplantation and large-scale irrigation from tanks, canals, wells, artificial lakes also served to increase production. Eastern उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार में आयरन इम्प्लीमेंट्स, लौह उपकरणों के व्यापक उपयोग से 6th सेंचुरी BC में एग्रीकल्चर, कृषि में काफी वृद्धि हुई। न्यू आयरन टूल्स एंड इक्विपमेंट, नए लौह औजार और उपकरण ने किसानों को फूड ग्रेन्स, अनाज का अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाया, जो उनकी ओन कंजम्पशन, स्वयं की खपत से अधिक था। बेटर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, बेहतर कृषि तकनीकें जैसे ट्रांसप्लांटेशन, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह लगाना और लार्ज स्केल इरिगेशन, बड़े पैमाने पर सिंचाई ने कृषि उत्पादन को और बढ़ाया। सिंचाई के लिए टैंक्स, कैनाल्स, वेल्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, तालाब, नहरें, कुएं और कृत्रिम झीलें बनाए गए, जिससे खेती अधिक उन्नत हुई। The rulers collected extra crops as tax to meet their military and administrative needs. These surplus could also be made available to the towns which had developed in the 6th century BC and which continued to prosper due to the increase in trade and commerce. Rulers, शासकों ने अपनी military and administrative needs, सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों से एक्स्ट्रा क्रॉप्स, अतिरिक्त फसल को टैक्स, कर के रूप में एकत्र किया। यह सरप्लस क्रॉप्स, अतिरिक्त अनाज, उन टाउन्स, नगरों में भेजा जाता था जो 6th सेंचुरी BC में विकसित हुए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के कारण ये नगर आगे भी प्रॉस्पर, समृद्ध होते रहे। विलेज लाइफ. The people in the villages, both in the southern and northern parts of India, belonged to different groups. There lived farmers, landlords, laborers, etc. in the villages. Village life was quite different from urban life. Villagers were called by different names in northern and southern parts of India. In South India, the Tamil region, landlords were called Vellalar and farmers were called Ujwar. Kadesiar and Adimai were the landless laborers. इंडिया के नॉर्थ, उत्तर और साउथ, दक्षिण दोनों हिस्सों के विलेजेस, गांवों में अलग-अलग ग्रुप्स, समूह के लोग रहते थे। गांवों में फार्मर्स, किसान, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार और लेबरर्स, मजदूर रहते थे।
विलेज लाइफ, गांव का जीवन, अर्बन लाइफ, शहरी जीवन से काफी अलग था। विलेजर्स, गांव के लोग को नॉर्थ और साउथ इंडिया में अलग अलग नामों से जाना जाता था। साउथ इंडिया, तमिल रीजन में लैंडलॉर्ड्स, जमींदार को वेल्लालर कहा जाता था। फार्मर्स, किसान को उजवार कहा जाता था। लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास जमीन नहीं थी, को कदेसियार और अदिमई कहा जाता था। The village headman was called a Grama Bhojka in northern India. This was a hereditary post and was usually held by big landlord. He served as a link between the king and the village. He was very powerful in village affairs. He had judicial power to settle village disputes. His main role was to collect taxes from farmers on behalf of the king. He was responsible for maintaining law and order in the village. नॉर्दर्न इंडिया में विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया, को ग्रामा भोजका कहा जाता था। यह एक हेरेडिटरी पोस्ट, वंशानुगत पद थी और आम तौर पर इसे कोई बिग लैंडलॉर्ड, बड़ा जमींदार, संभालता था। ग्रामा भोजका गांव और राजा के बीच लिंक, कड़ी का काम करता था। वह विलेज अफेयर्स, गांव के मामलों में बहुत पावरफुल, शक्तिशाली था। उसे जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह विलेज डिस्प्यूट्स, गांव के झगड़ों को सुलझा सकता था। उसका मुख्य कार्य फार्मर्स, किसानों से टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह करना और उसे किंग, राजा को देना था। साथ ही वह गांव में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार था। Small landowners were called grihapatis. Landless people were called dasa or karmakara. The other people who lived in villages followed a variety of occupations, e.g., carpenters, potters, blacksmiths, weavers, and laborers. Small landowners, छोटे जमींदार, को गृहपाटस कहा जाता था। Landless people, जिनके पास जमीन नहीं थी, को दसा या कर्मकारा कहा जाता था। गांवों में अन्य लोग विभिन्न ऑक्यूपेशंस, पेशों से जुड़े होते थे, जैसे कारपेंटर्स, बढ़ई, पॉटर्स, कुम्हार, ब्लैकस्मिथ्स, लोहार, वीवर्स, बुनकर, लेबरर्स, मजदूर। Position of women. The husband had almost unlimited right over his wife. The freedom of the upper class women was restricted. She had to take permission from her husband for going out of her home. If women had to go out for work, they did so at dawn when no men would see them. Their employers had the right to punish them if they did not carry out the work well. हस्बैंड, पति, को अपनी वाइफ, पत्नी, पर लगभग अनलिमिटेड राइट्स, असीमित अधिकार प्राप्त थे। अपर क्लास विमेन, उच्च वर्ग की महिलाओं की फ्रीडम, स्वतंत्रता बहुत रिस्ट्रिक्टेड, सीमित थी। उन्हें होम, घर से बाहर जाने के लिए हस्बैंड्स परमिशन, पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि महिलाओं को वर्क, काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो वे डॉन, सवेरे के समय जाती, ताकि कोई पुरुष उन्हें न देख सके। एम्प्लॉयर्स, मालिक, को यह अधिकार था कि यदि महिलाएं अपना काम प्रॉपर्ली, ठीक से नहीं करती तो वे उन्हें पनिश, दंडित कर सकते थे। जाटकास, an important source of information. Buddha probably has taken 500 previous births before he was finally born as Gautama. Many of these reincarnations were in animal form.
The story of each such birth is called a Jathaka, which is a folktale. These stories give us a lot of information on the social and economic conditions prevailing in the society those days. These Jathaka stories were probably composed by common people and were later written down by Buddhist monks. बुद्धा ने अपने अंतिम जन्म से पहले 500 प्रीवियस बर्थ्स 500 पूर्व जन्म लिए थे। इनमें से कई रीइंकार्नेशंस पुनर्जन्म एनिमल फॉर्म पशु रूप में हुए थे। प्रत्येक जन्म की कहानी को जथाका कहा जाता है, जो एक प्रकार की फोकटेल लोक कथा होती है। ये जथाका स्टोरीज हमें उन दिनों की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ये कहानियां संभवतः कॉमन पीपल, साधारण लोगों द्वारा बनाई गई थी और बाद में बुद्धिस्ट मंक्स, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई। टाउन्स स्टोरीज लाइक जथाकास, travelers' accounts, sculptures and archaeology are the main sources of information about cities. Many new towns grew up due to the growth of crafts and commerce and as capitals of the Mahajanabdas. Some of the famous towns were Vaishali, Banaras, Kaushambi, Patliputra, and Mathura. Most of these towns have been described in the literary texts of this period. Excavations at several sites have exposed the remains of once prosperous urban settlements such as Chirand, Sonpur and Buxar in Bihar, Sohgaura, Atranjikhera, Srinagarpur and Ghazipur in Uttar Pradesh, and Jalandhar, Ropar and Ludhiana in Punjab. Jathaka stories, travelers' accounts, sculptures और आर्कियोलॉजी, पुरातत्व हमें प्राचीन नगरों की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत हैं। क्राफ्ट्स, हस्तकला और कॉमर्स, व्यापार के विकास तथा महाजनाब्दास, महाजनपदों की राजधानियों के रूप में कई नए टाउन्स, नगर विकसित हुए। कुछ प्रसिद्ध नगरों में वैशाली, बनारस, कौशाम्बी, पटलिपुत्र और मथुरा शामिल थे। इन नगरों का उल्लेख उस समय के लिटरेरी टेक्स्ट्स, साहित्यिक ग्रंथों में भी किया गया है। एक्सकवेशंस, खुदाई में कई अर्बन सेटलमेंट्स, शहरी बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जैसे बिहार चिरांद, सोनपुर, बक्सर, उत्तर प्रदेश सोहगौरा, अतरंजिखेरा, श्रीनगारपुर, घाजीपुर, पंजाब जालंधर, रोपर, लुधियाना. We get some information of this period about life in some of these early cities from material remains. Sculptors carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forests. On the other hand, archaeologists have found a number of ring wells made of baked clay or ceramics, which were used as toilets, drains or garbage dumps. The most important town was Mathura, since it was situated on the crossroads of two important trade routes, one from the northwest to the east and the other from north to south. Mathura also prospered because of central location and as a center of sculpture, craft, goldsmiths, blacksmiths, weavers, garland makers etc., and religion. Most Kushna towns existed on the Uttarpatha route from Mathura to Taxila. The security and encouragement given by the Kushna Empire boosted commerce and trade even more. Material remains, पुरातात्विक अवशेष से हमें उस समय के कुछ नगरों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। स्कल्प्टर्स, शिल्पकार ने नगरों, गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों के सीन्स, दृश्य को पत्थरों पर उकेरा। आर्कियोलॉजिस्ट्स, पुरातत्वविदों को रिंग वेल्स, अंगूठी आकार के कुएं मिले हैं,
जो बेक क्ले और सिरामिक्स, पकी हुई मिट्टी या चीनी मिट्टी से बने थे। ये टॉयलेट्स, ड्रेन्स और गार्बेज डम्प्स, कचरा फेंकने की जगह के रूप में उपयोग किए जाते थे। मथुरा सबसे महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यह दो प्रमुख व्यापार मार्गों, ट्रेड राउट्स, के चौराहे पर स्थित था। नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर पश्चिम से पूर्व। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। मथुरा अपनी सेंट्रल लोकेशन, केंद्रीय स्थिति, स्कल्पचर, शिल्पकला, क्राफ्ट्स, हस्तशिल्प और रिलीजन, धर्म के कारण समृद्ध हुआ। यहाँ गोल्ड स्मिथ्स, स्वर्णकार, ब्लैक स्मिथ्स, लोहार, वीवर्स, बुनकर और गार्लैंड मेकर्स, फूलों की माला बनाने वाले जैसे कारीगर रहते थे। मोस्ट कुशना टाउन्स, अधिकांश कुषाण नगर उत्तर पथा राउट, उत्तर पथ मार्ग पर स्थित थे, जो मथुरा से टैक्सिला तक फैला था। कुशना एम्पायर, कुषाण साम्राज्य द्वारा दी गई सिक्योरिटी एंड एनकरेजमेंट, सुरक्षा और प्रोत्साहन ने कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ावा दिया। इंडस्ट्री। There was a significant achievement in the field of industry in this period. From the literature, inscriptions and sculpture of the period, we have numerous references of various arts, crafts and professions that flourished during this period. The textile industry produced woolen and cotton fabrics. Jewelry making, ivory working, pottery, painting, furniture and leather-based industries were quite advanced. Gold, silver, copper and iron mines were in full production, within the level of technology available in those days. Shipbuilding, stone cutting and weapon making were other important industrial activities. इस समय इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर, साहित्य, अभिलेख और मूर्तिकला से हमें विभिन्न आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोफेशंस, कला, शिल्प और व्यवसाय के विकास के प्रमाण मिलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में वुलन एंड कॉटन फैब्रिक्स, ऊन और सूती कपड़े बनाए जाते थे। अन्य प्रमुख उद्योग, ज्वेलरी मेकिंग, आभूषण निर्माण, आइवरी वर्किंग, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, चित्रकला, फर्नीचर, लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज, चमड़े पर आधारित उद्योग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन माइंस, सोना, चांदी, तांबा और लोहे की खदानें उस समय की उपलब्ध टेक्नोलॉजी, तकनीक के अनुसार पूरी तरह कार्यरत थी। अन्य प्रमुख इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, औद्योगिक गतिविधियां, शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण, स्टोन कटिंग, पत्थर तराशना, वेपन मेकिंग, हथियार निर्माण। During this period, almost all industries had their own association. Guilds, known as Shrenis, were highly developed organizations. These associations were formed by those involved in a particular commercial activity. This parallels similar development in medieval Europe. The Jathakas refer to 18 guilds. Each guild laid down rules and regulations for the conduct of its members. They monitored the quality of the finished product and standardized prices. They also acted as bankers, financiers and trustees. The guilds even maintained armies sometimes and helped the king in time to need. The head of a guild was called a jetka. इस समय लगभग सभी इंडस्ट्रीज, उद्योगों की अपनी एक एसोसिएशन, संघ होती थी।
इन्हें गिल्ड्स कहा जाता था, जिन्हें संस्कृत में श्रेणीज कहा जाता था। ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उन्नत संगठन थे। ये एसोसिएशंस उन लोगों द्वारा बनाई जाती थी जो किसी विशेष कमर्शियल एक्टिविटी, व्यापारिक गतिविधि से जुड़े होते थे। मेडिवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप में भी इसी तरह के संगठन विकसित हुए थे। जथाका टेल्स, जातक कथाओं में 18 गिल्ड्स, 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक गिल्ड अपने मेंबर्स, सदस्यों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और विनियम निर्धारित करता था। ये गिल्ड्स निर्मित फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार उत्पाद की क्वालिटी, गुणवत्ता की निगरानी रखते थे और प्राइसेस, कीमतें को मानकीकृत करते थे। ये बैंकर्स, फाइनेंसियर्स एंड ट्रस्टीज, बैंकर, वित्तीय सहायता देने वाले और न्यासी के रूप में भी कार्य करते थे। कुछ गिल्ड्स के पास अपनी आर्मीज, सेनाएं भी होती थी और आवश्यकता पड़ने पर वे किंग, राजा की सहायता करते थे। गिल्ड हेड, गिल्ड प्रमुख को जेठका कहा जाता था। ट्रेड। There was flourishing trade in luxury goods with the Roman Empire. The Romans imported spices, muslin, pearls, jewels and precious stones from Central and South India. Silk came through the northwestern part of the Indian subcontinent and was diverted to Indian ports on the eastern and western coasts of India. From these ports, silk was exported to Western Europe. The Romans exported wine amphora potteries, glassware gems, etc. to the Asian countries. भारत और रोमन एम्पायर, रोम साम्राज्य के बीच लक्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुओं का फ्लरिशिंग ट्रेड, समृद्ध व्यापार था। रोमान्स भारत से निम्नलिखित वस्तुएं इंपोर्ट, आयात करते थे। स्पाइसेस, मसाले। मसलिन, मलमल कपड़ा। पर्ल्स, मोती। ज्वेल्स, कीमती रत्न। प्रेशियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थर। सिल्क, रेशम, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत से होकर गुजरता था और इसे ईस्टर्न वेस्टर्न पोर्ट्स, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों तक लाया जाता था। इन पोर्ट्स से सिल्क को वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में एक्सपोर्ट, निर्यात किया जाता था। दूसरी ओर रोमान्स भारत और एशियाई देशों को निम्नलिखित वस्तुएं एक्सपोर्ट, निर्यात करते थे। वाइन, शराब। एम्फोरा पॉटरीज, मिट्टी के मटके और बर्तन। ग्लासवेयर, कांच के सामान। जेम्स, रत्न। Significantly, our country got gold and silver coins from the Romans in turn of our goods. The outflow from Rome was so great that Roman commentators such as Pliny were worried about the heavy outflow of gold to India. This inflow of Roman coins led to huge hoarding of these precious metals in some parts of India. More than 80 finds of Roman coins have been recorded, most of them from South India. भारत को गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, सोने और चांदी के सिक्के, रोमान्स, रोमनों से उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के बदले में प्राप्त होते थे। रोम से भारत में सोने और चांदी का इतना अधिक आउटफ्लो, बहिर्वाह हो गया कि रोमन कमेंटेटर्स, रोमन लेखकों जैसे प्लाइनी ने इस भारी गोल्ड आउटफ्लो, सोने के बहिर्वाह पर चिंता जताई। इस रोमन कॉइन इनफ्लो, रोमन सिक्कों की आमद के कारण भारत के कुछ हिस्सों में इन प्रेशियस मेटल्स, बहुमूल्य धातुओं का होर्डिंग, भंडारण हो गया। मोर देन 80 फाइंड्स, 80 से अधिक स्थानों पर रोमन कॉइन्स, रोमन सिक्के पाए गए हैं।
जिनमें से अधिकांश साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मिले हैं। In Western Europe, Indian pepper was in great demand and hence it was called Yavnpriya, means appreciated by foreigners in Sanskrit. Steel cutlery from India was another popular item imported by the Roman Empire. The balance of trade was so much in favor of India that ultimately Rome had to ban trade with India in paper and steel goods. Western Europe, पश्चिमी यूरोप में इंडियन पेपर, भारतीय काली मिर्च की बहुत डिमांड मांग थी। इसलिए इसे संस्कृत में यावनप्रिया कहा जाता था, जिसका अर्थ है अप्रिशिएटेड बाय फॉरेनर्स, विदेशियों द्वारा पसंद किया जाने वाला। स्टील कटलरी, इस्पात के बर्तन और औजार भी रोमन एम्पायर, रोम साम्राज्य द्वारा आयात किया जाने वाला एक लोकप्रिय भारतीय उत्पाद था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में था, क्योंकि रोम से अधिक गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी भारत आ रहे थे। इस कारण रोम ने पेपर एंड स्टील गुड्स, काली मिर्च और इस्पात के उत्पादों के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। Port cities were the centers of foreign trade. Most famous among them were Bhrigukcha or Baruch and Shurparka or Sopara on the west coast and Chandraketugam and Tamralipti on the eastern coast. Port cities, बंदरगाह नगर, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के सेंटर्स, केंद्र थे। कुछ मोस्ट फेमस पोर्ट सिटीज, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह नगर थे। वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर भृगुकचा, भरूच, शुरपर्का, सोपारा। ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट पर चंद्रकेतुगन, ताम्रलिप्ति। सोसाइटी, towns and cities developed into centers of trade while villages were mainly engaged in agricultural activity. In course of time, the people of the town developed variety of occupations and skills. This gave rise to set of people engaged in variety of occupations. The spurt in trade led to mercantile organizations known as guilds or shrenis being formed. This marked the beginning of specialized occupations. Towns and cities, नगर और शहर, व्यापार के सेंटर्स, केंद्र बन गए, जबकि विलेजेस, गांव, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, कृषि में संलग्न थे। समय के साथ, नगरों में रहने वाले लोगों ने विभिन्न ऑक्यूपेशंस एंड स्किल्स, पेशे और कौशल विकसित किए। इससे विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, व्यावसायिक समूह अस्तित्व में आए। ट्रेड ग्रोथ, व्यापार वृद्धि के कारण मर्केंटाइल ऑर्गेनाइजेशंस, व्यापारी संघ बने, जिन्हें गिल्ड्स, श्रेणियां या श्रेणीज कहा जाता था। यह विशेष रूप से स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, विशिष्ट व्यवसायों की बिगिनिंग, शुरुआत का संकेत था। Because artisans lived and worked together, they became very intimate to each other and matrimonial alliances followed. Men began to follow in their fathers' footsteps and joined their traditional family occupations. Artisans, कारीगर, एक साथ रहते और काम करते थे, जिससे उनके बीच इंटीमेट रिलेशनशिप्स, घनिष्ठ संबंध बन गए। इसके परिणामस्वरूप उनके बीच मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वैवाहिक संबंध भी होने लगे। मेन, पुरुषों ने अपने फादर्स फुटस्टेप्स, पिता के पदचिह्नों का अनुसरण करना शुरू किया और अपने ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशंस, पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए। दिस कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट और जाति। With time,
Caste became hereditary. The development of social classes was a logical outcome of this. People were divided into higher, middle, and lower classes, which is known as social stratification according to their occupations, e.g., farmers, potters, artisans, weavers, leather workers, etc. यह प्रक्रिया आगे चलकर कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था या जाति के फॉर्मेशन, निर्माण में बदल गई। समय के साथ कास्ट, जाति, हेरेडिटरी, वंशानुगत हो गई, यानी लोग अपने फैमिली ऑक्यूपेशंस, पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को अपनाने लगे। इसका परिणाम सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्गों के डेवलपमेंट, विकास के रूप में हुआ। लोग उनके ऑक्यूपेशंस, पेशा के अनुसार हायर, मिडिल एंड लोअर क्लासेस, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में विभाजित हो गए। उदाहरण: फार्मर्स, किसान; पॉटर्स, कुम्हार; आर्टिसंस, कारीगर; वीवर्स, बुनकर; लेदर वर्कर्स, चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग।